Hello everyone, this is Ritu Saxena and I welcome all of you on this learning platform of WhatsApp. Dear students, we are going to study sources of energy, though you have already studied it, but let's continue the same chapter. And before we come to jump to that point from where we have to pick up, let's revise for a while. Sources of energy. This is sixth chapter of your science book. Sources means what? Origin, from where the things originates, from where we get the things. And what is energy? Right from the beginning you are studying up till now, you must be having the clear understanding. Capacity of doing work, that is here written. Capacity of doing work, like you are listening, you are sitting, you are studying, or I am teaching, all these things requires energy. So energy, from where we are getting energy? We are getting energy by eating food. The food we eat gives us energy. But here in this context, in this chapter, what we are going to study, that is, we have learned about different forms of energy, like mechanical में क्या आता है? Kinetic and potential energy. Heat energy, class 7 में you have studied heat energy, chemical energy, electrical, light, sound, nuclear energy, and so on. These are all interconvertible. Interconvertible means it converts one from one form to the other form. That is what law of conservation of energy. Law of conservation of energy, that you know that energy neither can be created nor it can be destroyed. It will be, so it cannot be destroyed. So, and we need एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज़ लाइक बेकिंग केक, बेकिंग चपातीस. कौन सा एनर्जी चाहिए? हीट एनर्जी. हीट एनर्जी कहाँ से आएगा? केमिकल एनर्जी, दैट इज़ एलपीजी से आएगा. एलपीजी कहाँ से आएगा? ये आएगा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम से आएगा. तो यही चैप्टर में हम लोग कल पढ़ना है कि कैसे हम लोग को मिलेगा एनर्जी का सोर्स क्या है. ठीक है, तो let's move to the next part. All forms of energy that we use every day are stored in different ways in various sources of energy. We already know that substance which produce heat on burning in air are called fuels. Here we are going to study fuel. Whatever, all forms of energy like heat energy, light energy, sound energy, all these energies are stored in different ways in different sources of energy. Like solar energy, source of solar energy is sun, isn't it? So and what is fuel? Now let's understand fuel. That substance which produce heat on burning in air are called fuel. So if we burn paper, it will emit heat or not? Or can we consider paper as a fuel? Burning paper will emit heat, of course. जलाएंगे तो हीट तो निकलेगा, emit होगा ही. लेकिन क्या हम लोग can we consider this paper as fuel? No, we cannot consider. Why? Let's see why we cannot consider paper as fuel. In matter you have studied. In matter you have studied, matter has three states, है ना? Solid, liquid and gas. Similarly, energy can be in solid form, liquid form or gas form. Solid form like firewood, यानी लकड़ी जो हम लोग जलाते हैं गांव वगैरह में. In the villages the cooking is done on firewood. Nowadays LPG is there, but firewood is still used in the villages for cooking. Charcoal, coal are examples of solid fuels. Whereas liquid fuel में kerosene, देखे हो कभी? Petrol that we use in our vehicles, diesel गाड़ी आती है, are all liquid fuels. Gas, petroleum gas commonly known as LPG, ये सब है ना, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब याद कर लेना. जिसमें का मेन MCQ वगैरह में आता है एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन ये बनता है.
are examples of gaseous fuel. CNG, compressed natural gas. Now according to availability, भाई कहाँ पर मिल रहा है, where we will get this these energy. So we will get the energy, it can be renewable or non-renewable, that is exhaustible and inexhaustible. Okay, so renewable source of energy is a natural resource. Now tell me, what is source and resource? Source, from where we get the thing, शुरू में ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे. एंड रिसोर्स कि ये जो सोर्स है उसको किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, देन इट इज़ रिसोर्स. जैसे कि एनर्जी हम लोग कौन सा सोर्स हम लोग का क्या हुआ, अगर हम लोग सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो, और सन से हम लोग को सोलर एनर्जी का सोर्स क्या हो गया, सन. और उसको अगर हम किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर हम लोग कुकिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन इट बिकम रिसोर्स. दैट कैन बी रेप्लेनिश मतलब खुद से ही वो दोबारा से रेडी हो जाता है यूज़ होने के लिए. रेप्लेनिश मतलब दोबारा से रेडी हो जाना. इटसेल्फ नेचुरली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. रिन्यूएबल मतलब वो अपने आप ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खुद से बन जाए, खुद से वो रीयूज़ के लिए अवेलेबल हो जाए. विंड, सन, बायोमास क्या होता है भाई, जो भी एनिमल्स और प्लांट्स है जो वो डिके करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स वगैरह, उससे भी गांव वगैरह में बायोमास का बहुत यूज़ होता है. बड़ा बड़ा टैंक बना करके उसमें जो गोबर वगैरह इकट्ठा करके उससे कुकिंग वगैरह यूज़ होता है. वी विल गेट टू नो लिटिल लेटर इन द चैप्टर मे बी. एंड हाइड्रो पावर, दैट इज़ फ्रॉम वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. फ्रॉम वाटर आर ऑल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कैसे रिन्यूएबल वाटर को हम लोग डैम वगैरह बना करके टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से बिजली प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ हाइड्रो एनर्जी. दीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं होता, बार बार यूज़ किया जा सकता है. सो दिस इज़ इनएग्जॉस्टिबल natural resources. Now non-renewable energy sources which get used up and cannot be replaced or replenished in a short period of time are called non-renewable. अब ये क्या क्या चीज़ है भाई? Fossil fuel. What is fossil fuel? Fossil is, पहले तो ये बताओ fossil क्या होता है. Fossil is the remains of plants and animals. और ये फ्यूल कब बन गया, जब ये हम लोग आगे जब कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में, तब हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फॉसिल फ्यूल क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्यों भाई? क्योंकि फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है. मिलियन में कितना ज़ीरो होता है, ज़रा बताओ, हाउ मेनी ज़ीरो? चलो, तो फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, इसीलिए इसको बोला जाएगा नॉन रिन्यूएबल. एंड बिकॉज इट कैन एग्जॉस्ट, मतलब ख़त्म हो गया तो तुरंत बनना आसान काम नहीं है. सो दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स. नाउ रीजनेबल गुड एस्टिमेट of the quality of a fuel can be attained through what is known as calorific value. Now what is calorific value? The answer is given here only. The calorific value of a fuel is the amount of heat obtained from it when a unit mass of this fuel is completely burnt out under ideal condition. और ideal condition का भी यहाँ पर बात कर लेते हैं. What is ideal condition? तो जो ideal condition होता है, आइडियल कंडीशन जो है कि केमिस्ट्री या साइंस में जब हम लोग बात करते हैं तो एक प्रॉपर प्रेशर एंड टेम्परेचर में, ये नहीं कि बहुत प्रेशर है टेम्परेचर, एक प्रॉपर एक डिफाइंड टेम्परेचर और प्रेशर में जब किसी चीज़ को जलाया जाता है, व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड और इन दिस केस द फ्यूल इज़ बर्न्ड, देन इट इज़ कॉल्ड आइडियल कंडीशन.
मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना या एक्स्ट्रा कुछ लेना नहीं है। इसका एक टिपिकल एक सेट स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 30,000 किलो जूल एंड दैट ऑफ वुड इज 20,000 किलो जूल। मतलब अगर उतने ही अमाउंट में कोल को जलाया जाए तो 30,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और वुड को जलाया जाएगा तो 20,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो विच वन विल, इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए दिस कोल विल बी बेटर फ्यूल देन वुड। नाउ फॉसिल फ्यूल, लेट्स अंडरस्टैंड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आजकल के एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मेट थ्रू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, मेनली फॉसिल फ्यूल, दैट इज पेट्रोलियम। जस्ट सी अराउंड योर सेल्फ, सारी गाड़ियाँ और जनरेटर और ट्रेन जर्नी, एरोप्लेन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस फॉसिल फ्यूल, जिसके कारण जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर खूब तेल के कुएँ होते हैं, जहाँ पर इसी कारण ये रिच कंट्रीज़ भी बने हुए हैं, बिकॉज ऑफ गुड रिजर्वर ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स बनता कैसे है, चलो ज़रा इसको देखते हैं। फॉसिल फ्यूल आर so called because they were formed over a period of millions of years by the action of heat from the earth core and pressure from the rocks and soil and the remains of dead plants and animals. So story अगर हम लोग कहें fossil fuel का, story of fossil fuel, तो it is believed that millions of years ago the ground below the forest was split open. कुछ ऐसा हुआ कि फॉरेस्ट पूरा का पूरा दब गया बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज अर्थक्वेक और वोल्केनोज, किसी मतलब ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर या कुछ हुआ होगा जिसके कारण पूरा का पूरा फॉरेस्ट उस ग्राउंड के बिलो ग्राउंड में दब गया। तो फॉरेस्ट में क्या सिर्फ अकेला सिर्फ पेड़ पौधे रहते हैं? नहीं, फॉरेस्ट इज़ अ कंप्लीट एंटिटी, उसमें बहुत सारे एनिमल्स और अदर दिस इज फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्स, है ना, फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्स। तो फॉरेस्ट के साथ सारे जो उसमें जानवर और भी जो अदर लिविंग बींग्स थे वो सारे भी अंदर दब गए। द फॉरेस्ट गॉट बरीड, और वो सरफेस के अंदर दबते चले गए। दस द प्लांट्स हैड, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहे, दे डू नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, और उसके बाद उसके ऊपर सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स उसको सील करते चले गए, ऊपर के ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स को लगा। और उसके अंदर जब जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, एक्चुअली ये एकदम रॉक पूरा सॉलिड जो बन गए, और उसके साथ जो लिक्विड सिक्रेट हुआ, जो अगर हम लोग कोयला की बात करें तो वो पूरा जो फॉसिल फ्यूल है एकदम रॉक के फॉर्म में चेंज हो गए। तो दिस इज़ फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल में क्या हुआ, नॉट ओनली if I'm saying rock, it means the solid state. So but here we are getting in liquid form. What we are getting in liquid form? That is LPG, that is petroleum. Simply we will write here petroleum. That is crude oil. Let's move to the next part. Wood as fuel. Here is one question. There may be one confusion that wood is non-renewable source of energy, but it is renewable source of energy. Mind it, wood is a major renewable source of energy. How it is renewable? भाई एक बार फॉरेस्ट को तो एक लकड़ी जलाने के बाद तो वो वापस तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, उस लकड़ी को वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि फॉरेस्ट वी कैन रीजनरेट, एफॉरेस्टेशन करके हम लोग और लकड़ियाँ बना सकते हैं। इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगेंगे। फॉरेस्ट विल टेक टू द मैक्सिमम 5 to 10 years or 20 years in this time duration. Forest and trees can be regrown, वापस से उसको उगाया जा सकता है। So wood is a renewable natural resource. The combustion of wood is currently the largest source of energy.
अभी आज के डेट में कितना भी हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सारे लोग एलपीजी यूज़ करें, मतलब लकड़ियाँ ना जलाएं, लेकिन फिर भी आज के डेट में इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. Wood can be used for cooking and heating. It may occasionally be used in the steam engine. लेकिन आजकल थोड़ा कम ही ये सब चीज़ ऑब्सोलेट है, बट ओकेजनली मतलब कभी कदार लकड़ी का यूज़ हो सकता है स्टीम इंजन एंड स्टीम टर्बाइंस पर. The combustion of wood produces heat which can be put to a variety of uses. However, it also produce other gases. अब देखो जब combustion होता है यानी जब जलता है तो what is combustion? Combustion is a chemical process. It is a chemical process. क्या होता है भाई chemical process में? इस chemical process में when a substance, कोई भी substance है वो rapidly react करता है ऑक्सीजन के साथ और खूब सारा हीट जनरेट करता है. Combustion is a chemical process in which substance reacts and gives lots of energy, lots of heat rather, lots of energy. This is combustion. और ये जो combustion मतलब फ्यूल का combustion, जनरली जब हम लोग combustion की बात करते हैं तो फ्यूल की बात करते हैं कि सॉलिड लिक्विड कोई सा भी फ्यूल हो वो जब जलता है तो रैपिडली जलता है और वो बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो उसी तरह से अगर सूखी लकड़ी को जलाओगे तो बहुत सारा हीट एनर्जी जनरेट होगा. तो केमिकल कंबशन ऑफ वुड प्रोड्यूसेस हीट विच कैन बी पुट टू वैरायटी ऑफ. ऑब्वियसली हीट है तो उसका जिसको जैसा ज़रूरत होगा वो वैसा इस्तेमाल करेगा. हाउएवर इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैस, ग्रीन हाउस गैस है भाई. ग्रीन हाउस गैस क्या होता है भाई जानो? एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच आर अनडिज़ायरेबल, इरिटेटिंग एंड डेंजरस. इसका जो एक्सेस हो गया ना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो इट wood cannot be considered as a very good fuel. Okay, the excessive removal, now let's see this. The excessive removal of wood from forest can cause habitat destruction. What is habitat destruction? Habitat means जो उस जगह पर रहते हैं, जो जैसे जानवर और पशु पक्षी, the insects, they all live in the forest. So forest is their habitat where they stay. और अगर इस फॉरेस्ट को हम लोग हटा लें तो इन लोग का घर भी हट जाएगा. तो दिस कैन कॉज, अगर हम लोग हटाते हैं फॉरेस्ट को, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ को हम लोग बेघर कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं. तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सॉइल इरोजन होता है. फॉरेस्ट क्लास 7 में तुम लोग पढ़े होंगे फॉरेस्ट में कि फॉरेस्ट कैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. इट्स कंबशन रिलीजेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट्स बायोडिजेनरेशन. जो अगर इसको हम लोग जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर फॉरेस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, मान लो कि फॉरेस्ट कोई प्लांट सड़ गल रहा है, रॉट हो रहा है, तो उससे कम जो हार्मफुल गैसेस है कम निकलेंगे. इंस्टेड अगर उसको जलाया जाता है तो उसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना. तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोल की बारी आई भाई. नाउ इट्स द टर्न ऑफ coal. Hey, coal is a readily combustible. Readily combustible means बहुत आसानी से भाई इसको जलाया जा सकता है. As a, or it is, you can say that it is a complex mixture. Complex mixture of what? बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है जिसमें मेनली क्या है, मेनली क्या चीज़ है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये मेन इसका है. लेकिन इसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स मिले हुए रहते हैं, सब बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहती है. तो इट इज़ रेडियली कंबस्टेबल, मतलब बहुत आसानी से ये कंबस्ट करता है. कंबस्ट मतलब जलाना इसको बहुत आसान रहता है. ब्लैक रॉक और अ ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक. नाउ टेल मी व्हाट इज़ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक यू मस्ट हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी और इन सोशल साइंस दैट it is a type of rock. Yani coal is a type of rock that is formed by what? Sedimentation. What do you understand sedimentation?
जो डिपोजिशन होता है उसको सेडिमेंट्स कहते हैं। जब क्लास 6 में तुम लोग पढ़ रहे होगे तो उसमें सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस था। तो वो जो सेडिमेंट हुआ यानी नीचे जो इकट्ठे हो रहे हैं उसको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर जब रॉक की बारी आई तो ये कैसा रॉक होगा और ये कैसे फॉर्म होगा, यानी कोल यानी सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय एक्यूमुलेशन। यू नो सेडिमेंट्री रॉक कैसे हो रहा है, बन रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ, इसको सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ व्हाट, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ऑब्वियसली ये तो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स से ही बना है, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक और मिनरल्स particles on the earth surface, organic particles on the earth surface, at the earth surface। और उसके बाद फॉलोड बाय सीमेंटेशन, मतलब सीमेंटेशन ये लॉक हो जाता है, मतलब ये जो एक्यूमुलेशन हुआ डिपोजिशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिपोजिशन हुआ वो सीमेंटेड हो जाता है, मतलब वो मतलब एयर के कांटेक्ट से दूर हो जाता है। तो ये sedimentary rocks are formed that way. The coal is one of the fuel that has been used for cooking for food. However, it produces a lot of smoke and foul smelling gases which causes air pollution। गाँव वगैरह में जाओ सवेरे सवेरे सबके जो गैस जो कोयला जलाते हैं एक अलग तरह का खुशबू या महक आता है जिसको यहाँ पर फाउल स्मेलिंग गैसेस बोला जा रहा है। एंड स्मोक, बहुत सारा धुआं निकलता है, अगर गीला हो तो और धुआं निकलेगा। तो इसमें भी कोल का भी डिफरेंट टाइप्स है। वर्ल्ड वाइड कोल दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल ऑफ कोर्स, है ना, ये क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है, इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है। सो जनरली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल से बहुत कोल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, यू नो, फॉर व्हाट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ पर है भाई, बरौनी में है भाई, बरौनी में है, फिर बिहार में और कहाँ है, बक्सर में है, बाढ़ में है, और मध्य प्रदेश में बहुत जगह है जो कोल। और एक चीज़ चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके occurrence, how coal occurs and is there any difference in their quality, depends on how it is forming। तो यहाँ पर कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, डीप अंडर द, जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल है और हम लोग सीमेंटेशन और सेडिमेंट्री रॉक हुआ गए तो कैसे बन रहा है वो हम लोग जान चुके हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। सो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन झारखंड। एक पिक्चर तुम लोग शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी काला पत्थर, उसमें सारा है ना सारा कैसे कोल माइंस होता है उसमें पूरा दिखाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मौका मिले तो देखना कि हाउ कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल माइंस एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, द लेबर का क्या रिस्क होता है और कैसा लाइफ होता है। इट इज़ पिक्चराइज्ड इन दिस। तो धनबाद में कोल माइंस है, तुम लोग को पता होना चाहिए, पता ही होगा डेफिनेटली क्योंकि वी ऑल आर इन बिहार, तो वी नो दैट धनबाद इज़ नोन फॉर कोल माइंस। Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. The largest coal mines are at Bokaro and Jharia in Jharkhand and Raniganj। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोल माइंस है डीप डाउन अंडर, वो कुछ बना लिफ्ट टाइप का ट्रॉली बना रहता है एंड देन दे गो डाउन एंड एक्सट्रैक्ट द कोल। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन कैसे बना भाई कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट रिमेन्स गॉट बरीड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ
over the large period of time, the chemical and physical property of this plant remains were changed through the geological action that led to creation of this solid material. अब ये जियोलॉजिकल एक्शन क्या हुआ भाई? जियोलॉजिकल एक्शन, जियो मीन्स अर्थ. सो अर्थ के सरफेस पर जो एक्शन हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, एरोशन हो रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, तो उसमें पावर है, उसके फोर्स है, उसके वेलोसिटी है, और केमिकल रिएक्शंस जो हो रहा है, दैट इज़ जियोलॉजिकल एक्शन. तो कैसे हो रहा है? ओवर द पीरियड, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्लांट्स रिमेन्स वर चेंज थ्रू geological action that led to the creation of the solid material and the conversion of dead plants materials into coal is carbonization. तो भाई ये कार्बोनाइजेशन कैसे हुआ? अब डेफिनेटली अगर ये प्लांट एक फॉरेस्ट है, ये दब गया, इसके एक लेयर के कुछ कैलामिटी आया, इसके नीचे ये दब गया, इसके ऊपर एक और लेयर आया, फिर एक और किसी चीज़ का लेयर आया, और मिलियंस ऑफ ईयर में इसके ऊपर लेयर पर लेयर, तो इसके ऊपर क्या होगा? खूब सारा प्रेशर आएगा, खूब सारा प्रेशर और हीट भी आएगा. अर्थ क्रस्ट के नीचे से हीट आएगा, प्रेशर आएगा, और अब ये लगातार जो डिपोजिशन हो रहा है, जो कंटिन्यूस डिपोजिशन हो रहा है, तो ये एयर के कांटेक्ट से हट जाएगा. तो एयर का कांटेक्ट हटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर रहेगा, तो क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है उस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में जब जो फॉसिल है, जो दिस बायोडाइवर्स थिंग्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, दैट टर्न्स इनटू कोल. ओके, दिस इज कार्बोनाइजेशन. अब कार्बोनाइजेशन हो रहा है तो ये कोल बन रहा है. ओके, कोल बन रहा है, तो क्या आज के डेट में जो कोल बना और 5 साल के बाद, मतलब 5 साल तो में तो बनता नहीं है, मतलब कुछ मिलियन ईयर के बाद कुछ जो बना, उसके मतलब क्या इसका प्रॉपर्टीज़ अलग होगा? क्या इसकी खासियत होगी? क्या ये अलग अलग तरह का होगा? ऑफ कोर्स, ऑन द basis of this, types of coal has been divided into 4 categories. उसमें अब अच्छा कोल किसको माना जाएगा? बेस्ट कोल में, सबसे अच्छे कोल में क्या होगा? कार्बन सबसे ज़्यादा होगा. बेस्ट कोल, अच्छे कोल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसमें मॉइस्चर नहीं होगा, मतलब आवाज़ ये जलेगा अच्छी तरह से, खूब सारा हीट एनर्जी देगा, कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा. तो इसकी क्वालिटी क्या होगी? चलो तो आगे पढ़ते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एंड टाइम पीरियड ऑफ विच फॉसिल remained buried on the surface of earth, different varieties of coal have been formed. मतलब जो सबसे नीचे का कोल होगा और सबसे ज़्यादा प्रेशर में होगा, ज़्यादा जिसमें कार्बन कंटेंट होगा, वो बेस्ट टाइप का कोल होगा. तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल आर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. ओके, now see the picture. Let's understand the picture. What is there in the picture? मतलब ये ताज़ा है भाई, अभी ये बड़ी पूरी तरह से नहीं हुआ, पूरी तरह से इसको प्रेशर और हीट और बहुत सारा चीज़ नहीं मिला है, तो इसको बोला जा रहा है ये जो कोल बना ये पीट हुआ. तो क्या हुआ? दिस डिफरेंट टाइप ऑफ कोल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट ऑफ वोलाटाइल. व्हाट इज़ वोलाटाइल? मीन्स दैट कैन चेंज इनटू गैस. मतलब वो उड़ जाता है, जैसे कपूर है ना, वोलाटाइल होगा. कपूर, कैम्फर को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो वो अपने आप से ख़त्म हो जाएगा, तो वो हट जाता है. तो वोलाटाइल है कि उस पर differ from each other in terms of their content or volatile material and the percentage of carbon, moisture and other element present in them. तो ये सारा चीज़ डिसाइड करें कि उसमें क्या वोलाटाइल मटेरियल है और उसमें कार्बन कंटेंट क्या है, कितना मॉइस्चर है. उसमें ऑब्वियसली अगर ये ऊपर की तरफ पीठ है तो इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होगा इसमें, तो ये उतना अच्छा कोल नहीं कहलाएगा. अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो जलेगा तो खूब सारा धुआं देगा.
तो इट वोंट बी कंसिडर, इसमें कार्बन का कंटेंट कम होगा क्योंकि कार्बोनाइजेशन जो हो रहा है, कार्बोनाइजेशन एयर के एब्सेंस में हो रहा है, तो ये तो डायरेक्ट बहुत एयर के नज़दीक में बहुत कम टाइम के लिए ये एयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसको हम लोग अच्छे कोयले के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो ये दिस इज़ ऑफ ओनली 30% का। पीट इज़ अ सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज़ मेड ऑफ ओनली 30% ऑफ कार्बन। इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। मतलब ये अभी ऊपर में है, फिर इसके ऊपर और लेयरिंग आएगा तो ये बन जाएगा लिग्नाइट। और लेयरिंग होगा तो और प्रेशर बढ़ेगा तो ये बन जाएगा लिग्नाइट। और उसके बाद इसके जो नेक्स्ट स्टेज होगा ये, और इसके ऊपर ऑब्वियसली इसके ऊपर फिर से पीट आएगा, फिर ये और नीचे दबेगा, इस पीट का प्रेशर इसके ऊपर आएगा नीचे से इसको, और अगर एयर के कांटेक्ट में है तो गर्मी भी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो ये और नीचे दबेगा। तो इस फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, बिटुमिनस को 2 कैटेगरीज में डाला गया है, बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस। तो अब बिटुमिनस, अब देखो यहाँ पे बिटुमिनस है, इसके ऊपर कौन सा आ रहा है, लिग्नाइट का प्रेशर आ रहा है, पीट का प्रेशर आ रहा है। मतलब ये नीचे बिटुमिनस है, उसके ऊपर लिग्नाइट का प्रेशर लेयर, और उसके ऊपर एक पीट का प्रेशर। देखो इसके ऊपर कितना सारा प्रेशर पड़ रहा है, और ये ओवर द टाइम ये एयर के कांटेक्ट से भी दूर हो रहा है, एयर के कांटेक्ट पे भी नहीं आ रहा है। अब इसके बाद जस्ट सी एंथ्रासाइट के ऊपर कितना सारा प्रेशर पड़ रहा है, इसके ऊपर प्रेशर और कितना चीज़ का पड़ रहा है, बिटुमिनस का पड़ रहा है, लिग्नाइट का पड़ रहा है और पीट का पड़ रहा है। और इतना प्रेशर पड़ने के बाद ये एयर के कांटेक्ट भी नहीं है, तो ये सबसे अच्छा कोयला बनता है एंथ्रासाइट। लेट्स सी, लिग्नाइट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38%। उसमें कितना था, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ 30% ना, सी हियर 30% पीट एंड 38% लिग्नाइट, एंड बिटुमिनस कोल में 65% कार्बन आ जाता है। इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है भाई, इट्स द लोएस्ट ग्रेड, इट्स द अर्लियर, ये पीट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल। और ये जो है इसको, मतलब ये अर्लियर स्टेज है, इसको कोल बोला भी नहीं जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कोल बोला जा रहा है। मतलब येस कैन बी, बट इट हैज़ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, सो इट इज़ नॉट अ गुड फ्यूल। तो लिग्नाइट इसके सेकंड है, इसका लो ग्रेड, ये लोएस्ट ग्रेड है, ये सबसे कम क्वालिटी वाला कोल है, एंड इट हैज़ बीन यूज मेनली फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जो अभी हम लोग पढ़े थर्मल पावर जनरेशन, थर्मल प्लांट में ये सब यूज़ होता है। बिटुमिनस कोल हैज़ अबाउट 65% ऑफ कोल, यानी 30 एंड देन 35 एंड देन 65। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन एंड मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंथ्रासाइट इज़ हार्ड कोल एंड कंटेंस ओवर 90% ऑफ कार्बन, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है। इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, इट इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ क्वालिटी। ये सबसे नीचे में है, तो ये ज़्यादा टाइम भी लगा है बनने में, ज़्यादा प्रेशर, और इसमें ये इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है। दिस इज़ एंथ्रासाइट। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़